Hello students, in this video lecture I will show you how to prepare a sales budget. Dear students, sales budget is prepared by the marketing manager or the sales manager, and in sales budget forecast of sale is made in quantity as well as in value. So here I have selected one problem and I will show you how to prepare sales budget in the books of XYZ Company Limited as per the information provided in the problem. Here, X, Y, and Z Company Limited manufactures two products, X and Y, and sells them through two divisions, East and West. Students, this company has two products, X and Y, and it sells its products in two divisions, or I could say in two different areas, that is East Division and West Division. For the purpose of submission of sales budget to the budget committee, the following information has been made available. First, budgeted sales for the current year were product X and Y. Here we have the data of X and Y of East Zone or East Division, and at the same time we have also data of X and Y of West Zone or West Division. बच्चों यहाँ पे हमें करंट ईयर का बजट दिया गया है यानी कि करंट ईयर में X प्रोडक्ट की 400 क्वांटिटी बेची जाएगी ईस्ट डिवीजन में और वेस्ट डिवीजन में 600 क्वांटिटीज और वाई प्रोडक्ट की ईस्ट जोन में 300 क्वांटिटीज बेची जाएगी और वेस्ट में 500 क्वांटिटीज बेची जाएगी. Now here we have the actual sales for the current year were product X and Y east and west. देखो यहाँ पे इस जोन में इन एक्चुअल में X की 500 क्वांटिटी बेची गई है, whereas budgeted sale of X is 400 but the actual sale is 500. It means actual sale is more than the budgeted sale. And same case here also in West division, the budgeted sale of X is 600 but the actual sale is 700. Now in case of Y product, the budgeted sale in East division is 300 quantity but actual sale is 200 quantity, and budgeted sale of Y in West division is 500 quantity but the actual is 400 quantity. So here we have the current year sales budget and we have the current year actuals. करंट ईयर बजट का मतलब, सेल्स बजट का मतलब क्या होता है कि इतनी क्वांटिटी बेची जाएगी, उसका फोरकास्ट किया गया है, इतना बेचा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये एक्चुअल में इतना बेचा गया है, दैट इज एक्चुअल. नाउ हियर adequate market studies reveal that product X is popular. So as per the market study, it is found that product X is popular but underpriced. Now what do you mean by underpriced? Underpriced means the price is less than the expected price. मतलब कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो उसके एक्सपेक्टेड प्राइस से कम है. अगर मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस प्रोडक्ट की 10 रुपए है, अगर वो 9 रुपये में मार्केट में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट अंडर प्राइस्ड है. It is observed that if price of X is increased by ₹1, it will find a ready market. तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस ऑफ X, और यहाँ से हमें यह समझ में आता है अगर X का प्राइस 1 रुपया से भी बढ़ा तभी भी उसको रेडीमेड मार्केट मिल जाएगा, तभी भी वो मार्केट में बेचा जा सकेगा. ऑन द अदर हैंड Y is overpriced टू कस्टमर्स. इसका मतलब क्या, जो Y का प्राइस होना चाहिए दैट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्राइस. मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में चलो मान लो कि 5 रुपए रेट से बेचा जा सकता है, लेकिन अगर उसका प्राइस अगर आपने मार्केट में 7 रुपया लगाया है तो इसका मतलब क्या है, उसका ओवर प्राइस से आप बेचना चाह रहे हो, दैट इज ओवर प्राइस्ड. एंड हियर मार्केट कुड एब्सॉर्ब मोर इफ सेल्स प्राइस ऑफ Y बी रिड्यूस्ड बाय ₹1. तो और एक ऑब्जर्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y, और यहाँ पे बोला गया है कि अगर Y का सेलिंग प्राइस 1 रुपये से कम होता है तब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी Y की बेची जा सकती है मार्केट के अंदर. द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस. और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह पता चलती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन दो दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस ऑफ X and selling price of Y, that is increase selling price of X by ₹1 and decrease selling price of Y by ₹1. तो ये दोनों चेंजेस मैनेजमेंट ने एग्री किए हैं, मतलब मैनेजमेंट आगे जाके ये इन दो नए रेट से X प्रोडक्ट और Y प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगी और वो मैनेजमेंट ने एग्री किया है. नेक्स्ट,
From the information based on these price changes and reports from salesmen, the following estimates have been prepared by divisional managers. अब एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे एस्टिमेट्स दिए, इस किसने एस्टिमेट्स दिए, डिविजनल मैनेजर ने एस्टिमेट्स दिए, और किस बेसिस पे दिए, उसे रिपोर्ट्स मिले, उसे इंफॉर्मेशन मिली है दैट कि प्राइस में चेंजेस होने वाले हैं, और उसने उसे सेल्समैन के भी व्यूज मिले, सेल्समैन की भी इंफॉर्मेशन मिले, सेल्समैन के भी रिपोर्ट मिले हैं कि कस्टमर्स को कौन से प्रोडक्ट पसंद है, कौन सा कितना प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो सकता है, उसके रिपोर्ट्स, उसकी इंफॉर्मेशन डिविजनल मैनेजर को मिली है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ही हैज प्रिडिक्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट. आप यहाँ पे देखो एक्स का बजट कितना है, 400 क्वांटिटी इस जोन में, और वाई जोन में, वेस्ट जोन में कितना था, 600 क्वांटिटी था एक्स प्रोडक्ट का बजट. अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, डिविजनल मैनेजर ने, उसने परसेंटेज इंक्रीज निकाला है इन सेल्स और बजट, और इसके हिसाब से एक्स का जो प्रोडक्ट है उसके 10% एडिशनल सेल्स होना चाहिए इस जोन में, और वेस्ट जोन में 5% एडिशनल सेल होना चाहिए ओवर बजट. और यहाँ पे देखो उसने उसके हिसाब से वाई का ईस्ट जोन में 20% एडिशनल सेल होना चाहिए, और वेस्ट जोन में 10% एडिशनल सेल्स होना चाहिए. Now here, with the help of intensive advertisement campaign, the following additional sales above the estimated sales of divisional managers are possible. अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि कंपनी ने कैंपेन किया है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया है, और उसके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के कारण उसका जो भी इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट के कारण एडिशनल सेल्स होने वाला है, एडिशनल सेल्स होने वाला है, और अबाउ द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिविजनल मैनेजर्स. मतलब कैंपेन होने के कारण एक्स प्रोडक्ट जो है उसका ईस्ट जोन में 60 एडिशनल क्वांटिटी बेची जाएगी, वेस्ट जोन में 70 एडिशनल क्वांटिटी बेची जाएगी, वाई प्रोडक्ट की ईस्ट जोन में 40 क्वांटिटीज और वेस्ट जोन में 50 क्वांटिटीज, एंड इट इज इन एडिशन टू the prediction or the estimates made by the divisional manager. Here you are required to prepare a sales budget incorporating the above estimates and also show the budgeted and actual sales for the current year. हमें यहाँ पे सेल्स बजट बनाना है, हमें इनकॉर्पोरेट करना है अबव एस्टिमेट्स, मतलब ये दोनों को हमें कंसिडर करना है. ये जो दो पॉइंट है ना, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स और बजट इज, एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये दोनों एस्टिमेट को कंसिडर करने के बाद हमें सेल्स बजट बनाना है, नया सेल्स बजट बनाना है, एंड ऑल्सो शो द बजटेड एंड एक्चुअल सेल ऑफ द करंट ईयर, और करंट ईयर का भी सेल्स बजट बनाना है, और करंट ईयर का एक्चुअल सेल्स भी दिखाना है. तो क्या क्या दिखाना है टेबल के अंदर, हमें सबसे पहले हम दिखाएंगे करंट ईयर का बजट, मतलब ये जो डेटा है ना, ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा करंट ईयर एज अ करंट ईयर बजट. उसके बाद एक्चुअल सेल्स दिखाना है, तो ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे टेबल के अंदर एक्चुअल सेल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल शो I will show you how to prepare a sales budget, new sales budget, after considering these two important estimates, that is opinion of divisional manager, that is estimates of divisional managers, and the impact of advertisement campaign. Now here, okay, now this is the format, see the format of sales budget. Now see, in these columns I will show you, means I am going to incorporate the current year budget data. Here I will incorporate current year actuals, and here on the basis of current budget, as well as these two important estimates, the estimate of divisional manager and the impact of advertisement, I am going to prepare a new sales budget. Now see, here you can see product X and Y. Now here you can see the split of division, east division, west division, total, east division, west division, total, and grand total, that is addition of X product and Y product. Now first of all, I'll first incorporate the current year sales budget data here in this column, that is current budget. Now here see the budgeted sales for the current year were, now product X at in east division the budgeted quantity is 400, so here I'll mention 400 first, and in west zone or in west division the budgeted quantity is 600, so here I'll mention 600. Now the next is selling price. See, selling price is constant in east zone as well as west zone, so here also 9 rupees and here also 9 rupees. Now on the basis of this information I can calculate the total amount. See, if the selling price
per unit of X in East zone is rupees 9, and the budgeted sales quantity in East division, if it is 400, then in total it will be 400 into 9, so 3600. इन अ सेम वे मैं वेस्ट जोन का भी सेल्स बजट निकालूंगा, मतलब सेल्स वैल्यू निकालूंगा इन टोटल. सो 600 इंटू 9, खाली मुझे 600 इंटू 9 करना है, तो 600 इंटू 9 दैट इज 5400. अब टोटल निकालेगा, टोटल एक्स का कितनी क्वांटिटी सेल होने का करंट ईयर करंट बजट में एक्स की कितनी क्वांटिटी सेल होने वाली थी, दैट इज 1000 सेल करनी थी. तो टारगेटेड सेल्स क्वांटिटी इज 1000 at the rate of 9, and targeted sales turnover is 9000 of product X. अब हम निकालेंगे Y प्रोडक्ट के लिए. अब देखो यहाँ पे Y प्रोडक्ट का जो ईस्ट डिवीजन है वहाँ पे बजटेड क्वांटिटी है 300, तो यहाँ पे 300 आएगा. और जो वेस्ट जोन है वहाँ पे बजटेड क्वांटिटी है 500, तो यहाँ पे 500 आएगा. और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट है एट इन बोथ डिवीजन, सेम है, तो 21. अब यहाँ पे मुझे निकालना है कि बजटेड सेल्स इन वैल्यू कितना है. ये बजटेड सेल्स क्वांटिटी है. अब मुझे बजटेड सेल्स निकालना है इन वैल्यू. तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है. अगर 300 क्वांटिटी बेची जाने वाली है 21 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो 300 इंटू 21 करना है मुझे खाली. सो 6300. उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है. सॉरी, हियर 500 इंटू 21, सो 10,500. अब इन टोटल कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, बजटेड सेल्स इन क्वांटिटी कितनी है, सो 800 है, 800. और यहाँ पे वैल्यू में कितनी होगी, 16,800 एट द रेट ऑफ 21. अब हम निकालेंगे टोटल सेल कितना होगा इन क्वांटिटी, सारे प्रोडक्ट्स मिला के एक्स वाई जेड लिमिटेड के. यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट है खाली, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई मिला के बजटेड सेल्स कितना होना है इन क्वांटिटी, वो हमें यहाँ पे निकालना है. तो खाली ग्रैंड टोटल करना है हमें ए का और बी का. तो यहाँ पे 1800 क्वांटिटी सेल होगी इन टोटल ऑफ दिस कंपनी. और अगर टर्नओवर निकालना है तो टर्नओवर निकालने के लिए खाली हमें 9000 जो बजटेड सेल्स है ऑफ एक्स इन वैल्यू, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा बजटेड सेल ऑफ वाई इन वैल्यू, दैट इज 16,800. ओके, सो 25,800 ये करंट ईयर का बजट है. अब देखो करंट ईयर का बजट, करंट ईयर का सेल्स बजट बन के तैयार हो गया है. अब हमें करंट ईयर्स के एक्चुअल्स दिखाने हैं. तो करंट ईयर में एक्चुअल में देखो कितने एक्स की क्वांटिटी बेची है, 500 क्वांटिटी बेची है. और ईस्ट जोन में और वेस्ट जोन में कितनी बेची है, तो 700 क्वांटिटी बेची है. अब वाई का भी मेंशन कर लेता हूँ मैं. वाई की देखो ईस्ट जोन में या फिर ईस्ट डिवीजन में 200 क्वांटिटीज बेची गई है, और वेस्ट में 400 क्वांटिटीज बेची गई है. इसका मतलब इन टोटल जो बजटेड सेल होना है, नहीं सॉरी, जो एक्चुअल सेल हुआ है ऑफ एक्स का वो है 1200, और जो वाई प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल सेल हुआ है इन टोटल क्वांटिटी 600. और अब उसका रेट भी वही है 9 एंड 21, तो यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे 21 21. ओके, अब सबसे अब यहाँ पे हम पर एक्चुअल सेल कितना हुआ है एक्स का ईस्ट डिवीजन में इन अमाउंट, वो हम अब नहीं, वो अब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे. तो क्या करना है, 500 इंटू खाली 9 करना है, मतलब 3600 का सेल करना था, करने का टारगेट था, लेकिन एक्चुअल में कितना सेल हुआ है, 4500 का सेल हुआ है, मतलब ज़्यादा सेल हुआ है. ये फेवरेबल वेरिएंस है. ये देखो ये बजटेड फिगर है, ये एक्चुअल फिगर है, और जो एक्चुअल फिगर है इट इज़ मोर देन बजटेड फिगर, मतलब जितना प्रिडिक्ट किया था सेल उससे कई ज़्यादा सेल हुआ है एक्स का ईस्ट जोन में. अब वाई वेस्ट जोन में भी देखो एक्स का जितना सेल करना था उससे ज़्यादा सेल हुआ है एक्चुअल में. हाँ, तो इन वैल्यू कितना हुआ है, 700 इंटू 9, सो 6300. और इन टोटल कितना सेल हुआ है ईस्ट और वेस्ट जोन मिला के, वो हुआ है 10,800 का. देखो 9,000 का सेल करने का टारगेट था इन टोटल, हाँ, पर लेकिन इन टोटल 10,800 का सेल हुआ है, मतलब ज़्यादा हुआ है. अब यहाँ पे देखो ईस्ट जोन में वाई का बजटेड सेल्स क्वांटिटी थी 300, लेकिन एक्चुअल में खाली 200 क्वांटिटी ही सेल हुई है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएंस निकल रहा है, जो डिफरेंस है वो निगेटिव है, अनफेवरेबल है. तो इन वैल्यू हम यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा कितना सेल्स वैल्यू है
इन टोटल वो है 4200 और यहाँ पे वेस्ट जोन में अब मैं कैलकुलेट करूँगा 400 इंटू 21, सो 8400 और इन दोनों के एडिशन करने के बाद मुझे एक्चुअल की फिगर मिलेगी इन टोटल, सो 12,600। अब यहाँ पे अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी बेची गई एक्स और वाई मिला के, तो 1200 प्लस 600 1800 क्वांटिटी बेची गई और इन वैल्यू कितना सेल हुआ है कंपनी का, मतलब इन अमाउंट कितना सेल हुआ है इस कंपनी का। तो उसके लिए खाली क्या करना पड़ेगा, एक्स का जो सेल्स वैल्यू 10,800 उसके अंदर हमें वाई की सेल्स वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, सो 23,400 इतना हुआ है। अब हमें न्यू सेल्स बजट बनाना है। कौन सा बजट बनाना है, न्यू सेल्स बजट। और न्यू सेल्स बजट में प्रॉब्लम के हिसाब से हमें क्या इनकॉर्पोरेट करना है, द अबव एस्टिमेट्स, मतलब ये दो एस्टिमेट्स हमें कंसिडर करने हैं और इन दो एस्टिमेट्स के कंसिडर करने के बाद हमें न्यू सेल्स बजट बनाना है, न्यू सेल्स बजट बनाना है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्किंग नोट बनाई है, ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि वर्किंग नोट फॉर बजटेड क्वांटिटी। अब कितना क्वांटिटी में सेल होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एस्टिमेट देख लो आप, ये एस्टिमेट के हिसाब से जो डिविजनल मैनेजर का है उसके हिसाब से उसने परसेंटेज इंक्रीज दिए हमने, हमें सेल्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ओवर बजट, ओवर बजट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा सेल्स में, ये इसके परसेंटेज हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन करंट बजट के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट जोन में और ईस्ट और वेस्ट डिवीजन में एक्स की कितनी क्वांटिटी बजटेड सेल के लिए थी और वाई की कितनी थी, सबसे पहले हम वो पार्ट मेंशन करेंगे। अब एक्स की देखो कितनी थी, 400 क्वांटिटीज थी, ओके, और वेस्ट में कितनी थी, 600 क्वांटिटीज थी। और उसके बाद जो वाई प्रोडक्ट है उसकी 300 क्वांटिटी बेची जानी थी ईस्ट डिवीजन में और वेस्ट डिवीजन में 500 क्वांटिटीज बेची जानी थी। अब प्रॉब्लम के हिसाब से जो डिविजनल मैनेजर है उसके एस्टिमेट के हिसाब से एक्स जो प्रोडक्ट है उसका ईस्ट जोन में 10% से सेल बढ़ने वाला है, 10% से सेल बढ़ने वाला है, मतलब 400 तो सेल होगा ही होगा, बजट जो बजटेड सेल था प्रीवियस ईयर का उतना तो होगा ही होगा, उससे अलावा डिविजनल मैनेजर के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 10% सेल और होगा। तो यहाँ पे 10% ऑफ 400 कितना होता है, 40 होता है। इसका मतलब 40 से सेल बढ़ेगा आपका, 40 से सेल बढ़ना चाहिए डिविजनल मैनेजर की एस्टिमेट के अनुसार। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 10% इंक्रीज, उसके हिसाब से 10% इंक्रीज होगा। और उसके बाद जो वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन में उसके हिसाब से प्रोडक्ट एक्स जो है उसका 5% सेल बढ़ने वाला है। अब 600 का 5% होता है 30, तो 30 क्वांटिटी से सेल इसके हिसाब से बढ़ेगा और वो चेंज कितना है, 5% इंक्रीज होगा सेल बजट के अंदर। मतलब पहले कितना सेल होने वाला था, 600, अब इसके हिसाब से 5% सेल और बढ़ेगा। अब यहाँ पे y का भी कर लेंगे अपन इन सेम वे, y का भी कर लेंगे। अब y के लिए उसने कहा है कि इस जोन में 20% से सेल बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो करंट बजट 300 है, अब इसमें अगर आप 20% 300 का निकालते हो तो दैट इज 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट से इसके हिसाब से डिविजन मैनेजर के हिसाब से सेल बढ़ने वाला है, दैट इज 20% इंक्रीज, उसके हिसाब से 20% इंक्रीज सेल्स के अंदर होगा। और जो वेस्ट है, वेस्ट में 500 बजटेड क्वांटिटी है और उसमें भी 10% इंक्रीज होने वाला है, तो 10% ऑफ 500 होता है 50, तो यहाँ पे भी 50 से सेल 50 यूनिट से सेल बढ़ेगा, सो 10% इंक्रीज, ओके। अब हमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का, तो इसका मतलब क्या है, हमने ये एस्टिमेट्स कंसिडर कर लिए, डिविजनल मैनेजर का एस्टिमेट हमने कंसिडर कर लिया। अब हम कंसिडर करेंगे एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट कंसिडर करेंगे ऑन द सेल ऑफ एक्स एंड वाई इन डिवीजन ईस्ट एंड इन डिवीजन वेस्ट। अब इस डेटा के हिसाब से एक्स की 60 क्वांटिटीज का एडिशनल सेल होगा ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ईस्ट जोन में, तो यहाँ पे मैं 60 दिखा देता हूँ, और वेस्ट जोन में 70 क्वांटिटीज का सेल्स 70 क्वांटिटी से सेल बढ़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख लो आप वाई के लिए इस जोन में 40 क्वांटिटी से एडिशनल सेल होगा ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, और वेस्ट जोन में 50 क्वांटिटी से सेल्स और होगा, सेल्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें बजटेड सेल्स क्वांटिटी मिल जाती है, देखो यहाँ पे 400 प्लस 40 प्लस 60, तो 500 यहाँ पे होगा।
इसके बाद यहाँ पे देखो 600 प्लस 30 प्लस 70 मतलब 700 होगा। यहाँ पे आप देखो 300 प्लस 660 प्लस 40 तो 400 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 600 होगा। तो हमें बजटेड सेल्स क्वांटिटी मिल गई। हमने बजटेड सेल्स क्वांटिटी कैसे निकाली है? सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया? बजटेड सेल्स ऑफ द करंट ईयर। बजटेड सेल्स कितना है वो कंसिडर किया, क्योंकि जो डिविजनल मैनेजर है उसने उसके जो भी एस्टिमेट्स प्रिडिक्ट किए है दैट ही हैज प्रिडिक्टेड ओवर बजट। ओवर बजट, बजट के ऊपर इतना इंक्रीज होगा सेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसने वो प्रिडिक्ट किया था, उसी को हमने कंसिडर किया। उसके बाद हमने कंसिडर किया एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट कंसिडर किया और इस हिसाब से ये दोनों एस्टिमेट के हिसाब से हमने ये बजटेड सेल्स क्वांटिटी निकाली है इन द न्यू सेल्स बजट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 500 क्वांटिटीज एक्स की बेची जाएगी ईस्ट जोन में। मुझे बजटेड सेल प्लान किया है, 500 क्वांटिटीज को बेचना है, वो प्लानिंग किया है, दैट इज सेल्स बजट। और 700 क्वांटिटी को बेचा जाएगा इन वेस्ट जोन। और उसके बाद ईस्ट जोन में जो प्रोडक्ट वाई है उसकी 400 क्वांटिटी बेचने का टारगेट है, सेल्स टारगेट है। और वेस्ट जोन में 600 क्वांटिटी बेचने का सेल्स टारगेट है। अब सवाल बनता है कि हमें तो बजटेड क्वांटिटी मिल गई, अब हमें रेट भी निकालना है। तो रेट का यहाँ पे एडजस्टमेंट देखो, जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने एग्री किया है कि क्या एग्री किया है? सेल्स जो सेलिंग प्राइस में उसके जो भी चेंजेस रिकमेंड की गए हैं इन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, वो दोनों चेंजेस मैनेजमेंट ने एग्री किए हैं। और एक्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये से बढ़ने वाली है और वाई की सेलिंग प्राइस 1 रुपये से कम होने वाली है। अब यहाँ पे देखो एक्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? 9 है, तो अब वो 10 होगी क्योंकि वो 1 रुपये से बढ़ने वाली है। और वाई की सेलिंग प्राइस कितनी है? 21 है, वो 1 रुपये से कम होने वाली है, मतलब वो 20 होगी। अब 20 होगी। अब अपन यहाँ पे सेल्स बजट निकालेंगे। अब हमें क्वांटिटी भी मालूम है कितनी बजटेड क्वांटिटी है और उनकी बजटेड सेलिंग प्राइस क्या है वो भी हमें मालूम है। अब इनके अब सबसे पहले अपन टोटल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 700 आएगी, 700 प्लस 500 1200, यहाँ पे 1000 होगा। रेट द 10 रुपीज़ होगा और यहाँ पे भी रेट 20 रुपीज़ होगा। अब हमें बजटेड सेल मिल गया इन क्वांटिटी। अब हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है इन रुपीज़। इन रुपीज़ वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, अगर एक यूनिट 10 रुपये में बेचा जाएगा तो 500 यूनिट का कितना मिलेगा? तो 5000 रुपये का सेल करना है। कितने रुपए का सेल करना है? एक्स का ईस्ट जोन में 5000 रुपये का और वेस्ट जोन में 7000 का करना है। इन टोटल कितना करना है? 12000 का करना है। अब जो प्रोडक्ट वाई है उसका सेल जो होगा ईस्ट जोन में वो होगा, मतलब उसका सेल टारगेट होगा 8000 रुपीज़ का। 8000 रुपीज़ का सेल्स टारगेट होगा। और जो वेस्ट जोन है वहाँ पे वो टारगेट होगा 12000 रुपीज़ का। इसका मतलब इन टोटल इसका जो सेल टारगेट है एज पर न्यू सेल बजट दैट इज 20,000 का सेल करना है। अब अपन यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालेंगे, मतलब दोनों प्रोडक्ट मिला के एक्स एंड वाई कितना सेल करना है दोनों प्रोडक्ट मिला के। तो 2200 यूनिट्स मतलब पीसेस सेल करने हैं और इन वैल्यू मतलब इन रुपीज़ कितना सेल का टारगेट है दोनों प्रोडक्ट मिला के, दैट इज 32,000 ना। दिस प्रॉब्लम इज ओवर। देखो सेल्स बजट में क्या प्रेडिक्ट होता है? कितना सेल होना है इन क्वांटिटी एज वेल एज इन वैल्यू। तो टारगेटेड सेल हमें मिलता है सेल्स बजट में। ये प्लान्ड सेल है, एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है, ये खाली प्लानिंग है, इतना सेल करना है। एक्चुअल तो जब सेल होगा तब होगा, ये रियल फिगर नहीं है, ये प्लान्ड फिगर है। ये सारी की सारी प्लान्ड फिगर है, इतना सेल करना है इन क्वांटिटी। 1200 क्वांटिटी बेचनी है एक्स की, उसमें से 500 इस जोन में बेची जाएगी और वेस्ट जोन में 700 बेचने का टारगेट है। उसी हिसाब से देखो वाई की इन टोटल 1000 क्वांटिटी बेचनी है, उसमें से 400 बेचने का टारगेट है इस जो डिवीजन के लिए और वेस्ट डिवीजन में 600 क्वांटिटी बेचने का टारगेट है। और ये क्वांटिटी है और ये वैल्यू है इन रुपीज़ ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। तो सेल बजट यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। थैंक यू।